Hello students, good morning. Today we'll start in continuation of vector. What is subtraction of vector? Then we'll go to unit vector. Then we'll go to vector product. Okay. Let's know. Students, you already know addition of vector. Let there is a vector C. C vector is equal to A vector plus B vector. Yes or no? Parallelogram law, triangle law, you already know. Student, let this is A vector for triangle law. Let this is B vector. If two vectors are arranged by two sides of a triangle in same order, A, B, then the closing side will be representing the resultant vector, that is C vector is equal to A vector plus B vector. Yes or no? But student, for subtraction point of view, let I want to subtract A vector minus B vector. Subtraction means nothing but adding the same vector. Let I am subtracting A minus B. This can be written as A minus A plus of negative of B vector. There is no special rule for subtraction. A minus B, I'm subtracting A minus A from B, right? That means what? I'm subtracting B from A. That means I'm also indirectly adding A plus negative vector of B. Is that clear? So that means अगर मैं diagrammatically represent करूँ, this was A students and this was B. So negative vector means this is the negative vector, that is minus B, correct? So before I was adding A plus B and this vector was becoming C vector in opposite order like a triangle. But here A vector plus minus B vector, A vector plus minus B vector, that is also giving A minus B vector. So we can write this one is the closing side and this is the C vectorlet and this vector is A plus of minus B and that is how much? A minus B vector, correct? So simply keep in mind subtraction means adding the negative of the vector is known as subtraction. I want to subtract A minus B. That means I have to add negative vector of B with A. Is that clear? Got an idea about subtraction of a vector? Let's student give heading unit vector. Give heading unit vector. Unit vector. Students, just write unit vector means a vector. Unit vector means a vector which is having one magnitude 1 and a specific direction. Unit means 1, it's a vector whose magnitude is 1 and it is having a specific direction. So just write this is a vector having unit magnitude and a specific direction, right? This is the vector having unit means 1. This is a vector having unit magnitude. This is a vector having unit magnitude and a specific direction. Correct? This is a vector having unit magnitude and specific direction. ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे बताया था, लेट दिस इज ए वेक्टर, राइट? दिस इज ए वेक्टर. Always a vector is represented, how you know? A vector is always represented a magnitude, its magnitude along with its direction. Always with direction. Theta means the angle made by the vector. The angle made by the vector. The angle made by the vector in vector in anti-clockwise direction. In anti-clockwise, right? In anti-clockwise direction. Angle made with the vector in anti-clockwise direction. किसके साथ? With positive axis, with positive x-axis, with positive x-axis. That means अगर मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? That means this is a vector and this is the theta. Angle made with positive x. This is x, this is y. ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाता है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector. A vector will be represented by its magnitude along with the direction. How much angle it is making in anti-clockwise direction? See, this is anti-clockwise direction. How much angle it is making? So if I'll be taking the vector, let the vector will be represented. Some vector will be here v, and the angle is let theta. So it will be written as b vector is equal to magnitude of b with angle minus theta. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाके प्लस लिख रहा हूं और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नॉर्मल वेक्टर. बट जब यूनिट वेक्टर की बात आती है, वेक्टर पे हमें क्या करना है? मुझे इस मैग्नीट्यूड को 1 बनाना है. आई वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए. आई वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए. यूनिट वेक्टर अलोंग ए मैंने पूछा, ठीक है? सो स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग ए मतलब यूनिट मतलब तो मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, उस पे कोई डाउट नहीं है. मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए यूनिट दे रहे हैं, बट वेक्टर भी है.
तो वेक्टर है मतलब उसका एक डायरेक्शन भी रहेगा, तो वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, मैं ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, सो दैट विल बी द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा एंड इट इज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए को क्या बोलते हैं, ए कैप और हैट, क्या बोलते हैं, ए कैप। एक कैप कहीं पे अगर लिखा होगा, कहीं पे अगर कैप लिखा है मतलब वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस आई एम गिविंग द डायरेक्शन ओनली, आई एम गिविंग द डायरेक्शन ओनली। क्योंकि मैं अगर कोई किसी के साथ मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज रहता है। ठीक है, तो ए कैप मतलब क्या है, मुझे अगर इसको 1 बनाना है, स्टूडेंट बताओ मुझे इसको 1 बनाना है तो क्या करना होगा, मैंने आपको दे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू थीटा दे दिया मैंने, आई वांट टू मेक इट 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर एक काम कर दीजिए ना, इसका मैग्नीट्यूड को ही डिवाइड कर दीजिए। मतलब मैंने ए वेक्टर एंड थीटा के साथ डिवाइड कर दिया ओनली ए वेक्टर, तो ए कैंसिल हो गया ना, ए कैंसिल हो गया, तो कितना रहा, 1 थीटा रहा। तो इसको अगर मैं लिखूं, सो दिस इज 1 एंड थीटा। सो ये जो थीटा कहां से आया, दिस थीटा इज ऑफ ए कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो यूनिट वेक्टर किसी का नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रख के डायरेक्शन को हम अनचेंज रख रहे हैं। We're not changing the direction, but we're making the magnitude 1. That is the main purpose of unit vector. So this is unit vector along A. तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पर देखो, अगर मैंने लिखा A कैप मतलब unit vector along A, that means I'm indirectly writing A vector divided by magnitude of A. मतलब समझ पे आ रहा है, तो A vector मतलब magnitude of A into theta, correct, divided by magnitude of A, so that is also becoming 1 and angle theta, correct. So that is A cap. That is what? A cap. That is the unit vector along A. That is the unit vector along A. Just write and ask them the doubt which part you are having. Standard unit vectors in coordinate system. That means अगर मैं x axis ले लेता हूँ, हम y axis ले लेते हैं, हम z axis ले लेते हैं, तो unit vector along x axis is what? I cap. Unit vector y along y axis is j cap. Unit vector along z axis is k cap. That means मैं लिख रहा हूँ 3i cap. उसका मतलब है एक वेक्टर जो x axis से 3 यूनिट्स की दूरी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। j cap मतलब दैट इज सेम, अगर मैं 4j cap लिख रहा हूँ तो दैट मींस ये वेक्टर जो ओरिजिन से 4 की डिस्टेंस पर काम कर रहा है, यानी तो फिर इस एक्सिस से, x एक्सिस से इस तरह से इस पॉइंट, और k cap बोल रहा हूँ मतलब, सो दैट इज द वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, लेट मैं लिखा हूं a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, आई वांट टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। सो इट विल बी हाउ मच, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट अंडर, करेक्ट। तो यहां पर अगर मान के चलो मैं लिखा दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 9 प्लस 16 5, करेक्ट, 5 यूनिट्स है ना। If I want to make you find a cap, I told a cap means unit vector, a vector divided by its magnitude. That means a vector was how much, 3i cap plus 4j cap divided by magnitude means 5. So that will be equal to 3 by 5i cap plus 4 by 5j cap. Already you know, just to recapitulate you the things so that you can understand better the vector product. This is the way how to find the unit vector. ठीक है? Understand today product of a vector. स्टूडेंट्स, मैं जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट, लेट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यस सर नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर है, एंड वर्क इज ए स्केलर। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट वेक्टर आए, यहाँ पर रिजल्ट स्केलर आ रहा है, बट कुछ केसेस ऐसे होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर ही मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इसी बेसिस पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिवाइड किया गया है, जहां पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर आता है, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, राइट, दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर इनटू वेक्टर, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वेक्टर में आता है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर VECTOR, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अंडरस्टूड।
हियर रिजल्ट इज ए स्केलर। अब देख सकते हो इन स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट जो होगा वो स्केलर होगा। स्केलर होगा मतलब हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ मतलब है, डायरेक्शन तो रहेगा ही नहीं। बट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, वो वेक्टर होगा मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट, राइट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट टू वेक्टर्स, हमारे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। इफ आई एम मेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा, राइट? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, this is magnitude of b into cos theta. Theta is the angle between a and b, right? Angle between a vector and b vector. Theta is the angle between a vector and b vector. Understood? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपको तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर स्टूडेंट्स क्या होगा? cos theta है मतलब if two vectors are perpendicular, a perpendicular to b, that means theta is equal how much? 90 degree. So उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a dot b will become 0. करेक्ट, तो इसलिए एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो लेट नाउ सी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, मतलब आई जे के इनके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर ना। सो लेट्स सी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट गिव हेडिंग the scalar product of unit vector. Scalar product of unit vector, that means अगर मैं बोलूं i cap dot I cap, that means इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, both are acting along x means theta is equal to 0, so that means I can write 1 magnitude 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 into cos 0 is 1, so that's why 1 I cap dot I cap is 1. But I cap, sorry, j cap dot j cap will be how much? J cap dot j cap is equal to also 1. K cap dot k cap will also be equal to 1. सेम वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो 1 हो जाता है। बट इफ आई विल बी सेइंग यू I dot j, I is along x, j is along y, both are 90 degree, correct? If both are 90 degree, then dot product will be how much? 0. J dot k vector, that will be how much? 0. K vector dot I vector, that is also perpendicular, both will be 0. So any two orthogonal vectors को अगर हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी रिजल्ट 0 हो जाता है, और जो सेम में एक्ट कर रहा है I dot I, Z dot J, J dot K, J dot K dot K, that will be 1. Understood? Let's take an example to understand dot product. ठीक है, मान के चलो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा A vector is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap, right? B vector is equal to मैंने लिखा 3I cap plus 4j cap plus 5k cap. I just told you to find a dot b vector. Then what you have to do? I just told you to find a dot b vector. That means you have to write 2I cap plus 3j cap plus 4k cap dot 3I cap plus 4j cap प्लस 5k क्या। ठीक से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, पूरा इसको पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 3j कैप को पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4k कैप को पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट मैं अगर आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी कुछ रहेगा, बट अगर आई कैप को जे के या के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह जे को सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ बचेगा, अगर आई और के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। के कैप को अगर के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो बाकी तो सब 0 हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हमें क्या करना है, सिंपली 2I कैप डॉट 3I कैप कर दिया, आई को आई के साथ, प्लस 3J कैप डॉट 4J कैप कर दिया, करेक्ट, प्लस 4K कैप डॉट 5K कैप कर दिया। ठीक है, I डॉट I इज 1, तो 2 into 3 कितना हो गया? 6, 3 into 4 कितना हो गया? 12, 4 into 5 कितना हो गया? 20, तो टोटल कितना हो गया? देखो 18 into 20 plus 20, I mean 38 units, correct? So this is the product of scalar product of two vectors. Now find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. अगर हमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल्स निकालना है तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स देखो, आपने ये पता लगा लिया ना, a dot b means magnitude of a, magnitude of b into cos theta. So cos theta is going to be how much? A vector dot v vector by magnitude of a into magnitude of v. इस तरह से हमें cos theta मिल जाएगा, तो थीटा को हम इन्वर्स कर देंगे, राइट?
उसी लॉजिक में डेवलप करते हुए अगर हम निकालेंगे यहाँ पर एंगल, तो ऑलरेडी आपको मिल गया है ए डॉट बी, ऑलरेडी आपको कितना मिल गया है 38 यूनिट्स मिला है आपको ए डॉट बी। दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी का वैल्यू, और हमें cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा के लिए क्या करना होगा मुझे, दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जैसे कि मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ a इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट, का रूट ओवर। सो दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 16, हाउ मच, 16 4 20, 29 है ना। फिर अगर मैं b का मैग्नीट्यूड निकालूं स्टूडेंट्स, इफ आई विल फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ b, इतना c 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना हो जाएगा देखो, 16 9 कितना 25 प्लस 25 हाउ मच 50, रूट ओवर ऑफ 50 यूनिट्स, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, cos थीटा निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू कितना आया था a डॉट बी 38 आया था, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आया, रूट 29 आया, फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया 50 आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अगर हमें थीटा निकालना होता है तो वो तो हम सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 38 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 29 into रूट ओवर ऑफ 50। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर, और आस्क मी द डाउट। नेक्स्ट लेट गो टू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो लेट दिस इज a वेक्टर dot cross b vector, that is equal to a vector magnitude b sin theta. Theta is the angle between two vector, theta is the angle between टू वेक्टर, करेक्ट। पर स्टूडेंट ये तो मैग्नीट्यूड तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, बट वेक्टर है मतलब आउटपुट, मतलब ये जो आएगा रिजल्ट, दैट विल बी डायरेक्शन विल बी देयर और नॉट, यस और नो। दैट मींस लेट दिस इज a वेक्टर, this is b vector, I will make the angle between them is theta, you can find a dot ab sin theta, but in which direction will be the resultant vector, or let I want to find a cross b, and here also this is a vector, this is b vector theta, but I want to multiply here b cross a vector, that is ab sin theta, this is also ab sin theta, magnitude will remain same, but what about the direction of the vector? To know the direction of the vector, we use right hand thumb rule or screw rule. Which rule we use? Right hand thumb rule, right hand thumb rule कहते हैं उसको, और screw rule भी कहते हैं। जस्ट अभी अभी आप 10th पे पढ़ के आए हो ना, मैग्नेटिक फील्ड, करेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद है कि नहीं, है यस ना सर, याद? याद है। Yes, sir. चलो देखो, तो आई वांट टू मल्टीप्लाई a क्रॉस b, दैट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग a टू b। तो मैं जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा एनसर्कल्ड फिंगर्स उस तरफ रहेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो मेरा एनसर्कल्ड फिंगर्स जो है वो a टू b रहेगा, और थंब किस तरफ दिखा रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो होता है डॉट होता है, करेक्ट। सो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू a एंड b इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये डॉट का मतलब है, तो द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी राइट, द रिजल्टेंट वेक्टर will be perpendicular, right, will be perpendicular to a and b vector always, and it will be out of the plane, right, and it will be out of the plane, it will be out of the plane, मतलब ये बाहर की तरफ काम करेगा, it will be out of the plane, correct। और अगर मैं यहाँ पर b क्रॉस a की बात करूं, this was all about a क्रॉस b, अगर मैं यहाँ पर b क्रॉस a की बात करूं स्टूडेंट, जस्ट देखो b क्रॉस a, that means I am coming from b to a, see carefully। पहले अपनी फिंगर्स, एनसर्कल्ड फिंगर्स को ऐसे ले रहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनसर्कल्ड फिंगर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनसर्कल्ड फिंगर्स, ठीक है, और थंब बाहर की तरफ, इसलिए नेट वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, जैसे मैं मार्कर को रखा हूं, ये इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर, और बाहर की तरफ एक्ट करेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, बी क्रॉस ए, मतलब मैं बी टू ए आ रहा हूं, तो अपनी एनसर्कल्ड फिंगर्स में बी टू ए ले जाऊंगा, तो थंब किस तरफ होता है, इनटू द प्लेन होता है, तो इनटू द प्लेन को हमेशा क्रॉस करके, तो मतलब ये रूम की उस तरफ से परपेंडिकुलर होगा, इट इज आल्सो बी क्रॉस ए इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन,
and perpendicular to both A and B, and perpendicular to both A and B vector. तो यही से एनसर्कल्ड फिंगर्स मतलब राइट हैंड थंब रूल लगा के अगर किस तरह आप मल्टीप्लाई करो, अपनी कॉपी में आप इसको ड्रॉ किए हो, आप देखो ए टू बी जा रहे हो तो आपका जो होगा ऊपर की तरफ होगा आपकी कॉपी के रेस्पेक्ट में, और अगर बी टू ए आ रहे हो तो कॉपी में इनटू द प्लेन होगा। अगर बोर्ड की रेस्पेक्ट में बोलूं ए टू बी मतलब बाहर की तरफ है, बी टू ए मतलब इनटू द प्लेन है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो निकालना हम सीख जाएंगे, बट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, cross product of unit vector. Student, A cross B means AB sin theta. A vector cross B vector means magnitude of A into magnitude of B into sin theta. ध्यान से देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने बताया तीन यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं, दिस इज I, दिस इज J कैफ, दिस इज K कैफ, करेक्ट। I टू J अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक से देखो स्टूडेंट्स, ये जो K कैफ है ना, ये बाहर की तरफ है, इस तरह इमेजिन करो कॉपी में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और जो जेड एक्सिस है वो इस तरह से है, करेक्ट। ठीक से ध्यान से अपनी कॉपी में रख के इसको पेन को देखो, कॉपी में एक्स बनाओ वाई बनाओ और अपनी पेन को रख दो, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आई टू जे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी आई टू जे, आई वांट टू मल्टीप्लाई आई क्रॉस जे, करेक्ट। तो देखो स्टूडेंट, आई क्रॉस जे जो है उसका वेक्टर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है ना, इट्स वेक्टर इज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड में कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, एंड इट इज आउट ऑफ द प्लेन, तो हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप लिखूं तो दैट इज जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। अगर मैं जे कैप क्रॉस जे कैप लिखूं तो दैट इज आल्सो जीरो, के कैप क्रॉस के कैप लिखूं तो दैट इज आल्सो जीरो, करेक्ट। सो दिस इज आई क्रॉस जे इज के कैप। फिर अगर मैं इस तरह आता हूं स्टूडेंट्स, देखो ठीक से, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है, मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे लाया, जे टू के, आई एम कमिंग फ्रॉम जे टू के, तो थंब इज इन विच डायरेक्शन, एक्स एक्सिस ना। तो अगर मैं लिखूं यहां पर जे कैप क्रॉस के कैप, सो दैट इज हाउ मच, जे कैप क्रॉस कैप, तो थंब इज हाउ मच, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट। फिर अगर मैं स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक से देखो, ऐसे मैंने रखा, अपनी कॉपी के ऊपर रखो, आई एम मल्टीप्लाइंग जे टू आई, आई एम मल्टीप्लाइंग जे टू आई, सी दिस इज सॉरी के कैप टू आई कैप, दिस इज के कैप बाहर की तरफ, दिस इज आई कैप, के टू आई मेरा फिंगर्स आ रहा है, तो थंब जो किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। सो के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू हाउ मच, जे कैप। समझ पाया स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा Yes, आई sir. क्रॉस जे, मैंने लिखा आई क्रॉस जे इज के, अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो इट विल बी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन मतलब क्या होगा, माइनस के कैप, तो आप लिख सकते हो जे कैप क्रॉस के कैप मींस, सॉरी आई क्रॉस जे था यहाँ पर, मैंने उसको उल्टा कर दिया, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप मतलब क्या है, माइनस के कैप, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर मैं जे टू के जा रहा हूँ तो मेरा थंब इस तरफ, अपनी कॉपी पे आप देखो ऐसे जे टू के लाओ, थंब विल बी इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन आ रहा है मतलब माइनस के कैप, करेक्ट है ना। नेक्स्ट जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस जे टू के आ रहा हूं आई है, तो अगर के क्रॉस जे लिखूंगा तो दैट इज माइनस आई कैप, करेक्ट। और के क्रॉस आई जे, अगर आई क्रॉस के लिखूंगा तो माइनस जे कैप, ठीक है। तो इसको पूरा चीज को कंफ्यूज ना होने के लिए हम एक चीज बता देते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं आई जे के, ठीक है। अगर मैं आई टू जे जा रहा हूं, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, सो दैट इज के कैप। अगर मैं जे टू के आ रहा हूं, सो दैट इज आई कैप, है ना। अगर मैं k टू i जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम k कैप टू i कैप, देन दैट इज j कैप, अंडरस्टूड। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ठीक उस तरह अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊंगा, i कैप j कैप, और यहाँ पर हमने k कैप लिखे, मैं ऐसे जा रहा हूं अभी एंटी क्लॉकवाइज जा, तो सारे वही होगा बट माइनस j टू i, j टू i मतलब क्या है, जो प्लस k कैप था वो माइनस k कैप हो जाएगा। और मैं ऐसे आ रहा हूँ i टू j कैप आ रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस j कैप हो जाएगा। और मैं k टू जा रहा हूँ जो i कैप था वो माइनस i कैप हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह आप दिमाग में रख सकते हो। just ask me what you are having doubt. Take an example student, a vector is equal to वही उस तरह 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, b vector is equal to how much, let 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, ठीक है। डायरेक्शन तो निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ध्यान से देखो 2i cap plus 3j cap plus 4k cap होल इनटू क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, 3i cap plus 4j cap
प्लस 5k कैप। ओके, इज दैट क्लियर? तो अभी हमें क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू नाउ? हमें i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए 2i कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2i कैप को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4j कैप प्लस 5k कैप, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए क्यों लिखेंगे फिर से। प्लस 3j कैप को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा ना, j क्रॉस j, तो इसलिए सिर्फ 3i कैप प्लस 5k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट। प्लस 4k कैप, 4k कैप को किसके साथ, k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो ओनली आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अभी बात यह है कि i कैप, j कैप, k कैप में कौन सा वाला पॉजिटिव, कौन सा वाला नेगेटिव, तो इसलिए दिमाग पे इसको रखना है, ये डायग्राम हमेशा रखना है। कुछ दिन के बाद वो प्रैक्टिस हो जाएगा। i टू j अगर आ रहा हूँ पॉजिटिव k कैप, j टू k आ रहा हूँ तो पॉजिटिव i कैप, k टू i जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव j कैप, ठीक है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इफ आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज माइनस के कैप, इफ आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज माइनस आई कैप, इफ आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज सो दैट इज माइनस जे कैप। इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देख के ठीक से देखो। 2 इंटू 4 कितना, 8 लिख दिए। आई कैप जे कैप क्या है, आई कैप जे कैप, देखो ठीक से, आई कैप जे कैप इज हाउ मच, के कैप, तो यहाँ पर हम के कैप लिख सकते हैं 8 के कैप। फिर से 2 प्लस 5 कितना, 10, 10 आई कैप के कैप, देखो आई कैप के कैप, आई कैप के कैप क्या हो रहा है, आई टू के आ रहा हूं मैं, मतलब ऐसे आ रहा हूं तो ये माइनस जे कैप, सो राइट हियर माइनस जे कैप। प्लस 3 टू 3, 3 टू 3 कितना 9, जे कैप आई कैप, देखो जे कैप आई कैप, उल्टा जा रहा हूं मैं, जे टू आई जा रहा हूं, सो दैट इज माइनस के कैप, करेक्ट। फिर से 3 प्लस 5 15, जे कैप के कैप, देखो जे टू की मतलब प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप लिखे हमने, समझ पा रहा है। प्लस 4 इंटू 3, देखो 4 इंटू 3 कितना 12, के टू आई ऐसे जा रहा हूं तो दैट इज प्लस जे कैप, करेक्ट। देन 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 16, के कैप जे कैप, दिस इज के कैप, दिस इज जे कैप, उल्टा आ रहा हूं, के टू जे आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। सो देखो के को के साथ 8 के कैप है, यहाँ पर माइनस मतलब माइनस 9 के कैप है, तो कितना हो जाएगा 8, मतलब पहले आई से शुरू करते हैं। आई कहां पर, एक आई यहाँ पर है, देख सकते हो अब यहाँ पर, just see here, just see here, this is I cap 15 I cap, correct। अरे यार, this is 15 I cap है ना, और यहाँ पर माइनस 16 I cap, तो क्या हो जाएगा, हो गया माइनस I cap, हो गया माइनस 1 I cap, ठीक है। और फिर J 10 J cap, और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा J कहाँ है 12, 10 माइनस 10 J cap प्लस 12, तो कितना हो गया माइनस 2 J cap, करेक्ट, नहीं प्लस 2 J cap, करेक्ट है ना, माइनस 10 J cap प्लस 12 J cap, तो दैट इज प्लस 12 माइनस 10 प्लस 2, 8 के कैप, और यहाँ पर रह गया 9, 8 माइनस 9, तो दैट इज माइनस के कैप, अंडरस्टूड। सो दिस इज द रिजल्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। स्टूडेंट थोड़ी ना हम इस तरह हमेशा करेंगे, एक मैट्रिक्स मेथड पे करेंगे। क्या करना है जस्ट बताता हूँ, याद रखो, नहीं तो फिर बाद में देख लेना। पहले ऊपर में आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो, के कैप लिख दो, करेक्ट। यहाँ पर जिसकी कोएफिशिएंट जितना है 2 3 4 लिख दो, 3 4 5 लिख दो, करेक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। पहले हम आई कैप को रखेंगे, राइट, दैट इज आई कैप को रख दिया हमने पहले। जब मैं आई कैप को लूंगा स्टूडेंट, तो इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, जो बचा ये वाला पार्ट बचा, इसको हटा दूंगा, इस ये ऊपर वाला को हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो ये वाला पार्ट बच गया, करेक्ट। सो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, ध्यान से देखो, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, करेक्ट, यस सर नो। फिर हमने जे कैप लेना है, तो ये मैं ऊपर से माइनस लिख दिया हूं, तो राइट हियर माइनस जे कैप, करेक्ट, नीचे पे लिखता हूं माइनस माइनस जे कैप, ठीक से देखो। तो अगर मैं माइनस जे कैप लिखता हूं, तो जे कैप मतलब इसको छुपा दूंगा, इसको छुपाने से अभी क्या बचेगा, इसको छुपा दिया तो 2 5 4 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। दोबारा वीडियो आप देख के ठीक से ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जे कैप ले रहा हूँ, तो जे कैप जब लेंगे माइनस लेंगे, और इसको छुपा देंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे। फिर से प्लस के कैप रख दिया हमने, ठीक है, देखो फिर से हमने क्या किया, प्लस के कैप रख दिए, तो प्लस के कैप मतलब इसको छुपा देना है, तो प्लस के कैप में क्या करना है, देखो इसको छुपाऊंगा तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, करेक्ट।
सो एक लाइन पे आ जाएगा आंसर, दैट इज देखो 3 इंटू 5 15 माइनस 16 क्या होगा माइनस आई कैप, जो कि आया था हमारा 2 इंटू 5 10 10 माइनस 12 कितना है -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस 2 जे कैप, करेक्ट है ना। और यहाँ पर 2 इंटू 4 8 माइनस 9 माइनस 1, सो दैट इज माइनस के कैप। यही आंसर हमारा था, आया था कि नहीं, एक लाइन पे बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स मेथड है जिसके जरिए आपको करना होगा, ठीक है।